السلام علیکم دوستو، میں ہوں نظام الدین۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مقبول نظام۔ میں آپ سبھی دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو، آج ہم بڑی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے جس کا نام ہے اکنامک کرائسس اور اکنامک ڈاؤن فال، اس کے کازز اور آخر میں اس کے سیلیوشنز بتائیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کی اکنامی کے بارے میں بہت کچھ مٹیریل یہاں پہ ملے گا۔ تو دوستو، اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن بٹن کو لازماً پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو، آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان میں اکنامک ڈاؤن فال چل رہا ہے اس کے کیا اسباب ہیں اور کیسے ہم اپنے اکنامی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلا جو فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہماری اکنامی تمام بری حالات سے چل رہی ہے وہ ہے امبیلنس ان امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ۔ مطلب کہ جو آپ امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے ہو، اس ایکویشن میں جب انیکویلٹی آ جاتی ہے، امبیلنس آ جاتا ہے، تب آپ کی اکنامی پہ بہت بڑا برڈن پڑ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثلاً ایک چیز ہے جو آپ 30 روپے میں خریدتے ہو اور آپ اسی چیز کو آپ 20 روپے میں بیچو گے تو 10 روپے کا خسارہ تو ہو گیا نا۔ بالکل ایسے ہی طرح سے ہمارا جو ملک ہے پاکستان، وہ ایکسپورٹ بہت کم کرتا ہے اور امپورٹ بہت زیادہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں ایکویشن میں بہت امبیلنس آ جاتا ہے۔ جب امپورٹ اور ایکسپورٹ میں امبیلنس آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو آ جاتا ہے۔ کیسے؟ اگر آپ 50 روپے کی خریداری کرتے ہو اور ہمیں ایکسپورٹ جو کرتے ہو وہ 40 روپے کی ہوتی ہے، تو 10 روپے کا خسارہ جو ہے وہ تو لازماً ہمیں پیمنٹ کرنی ہوگی نا 10 روپے کی، وہ کہاں سے ہم کریں گے؟ تو اسی طرح سے بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے نا وہ بگڑ جاتا ہے اور ہمارے کرنسی کی ڈیویلیشن ہو جاتی ہے۔ سپوز کریں کہ آپ ایک دکان سے چیزیں خریدتے ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس کو پیمنٹ آپ کہتے ہو دکاندار کو کہ بھائی میں پیمنٹ آپ کو کل کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ کل آ جاتا ہے آپ کا تو پھر آپ اس کو کہتے ہو بھائی میں دوسرے دن کر دوں گا۔ وہ دوسرا دن میں آ گیا، پھر آپ بولتے ہو کہ بھائی میں تیسرے دن کروں گا، تو کیا ہوگا کہ دکاندار آپ سے خفا ہو جائے گا اور دوسری دفعہ آپ کو کوئی بھی چیز نہیں دے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی بھی کنٹری پیمنٹ اچھی طرح سے نہیں کرے گا تو کون کرے گا اس سے ویاپار؟ تو اسی طرح سے ہمارا جو ٹریڈ کا سسٹم ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ دوسرا جو بڑا کاز ہے جس کی وجہ سے ہماری اکنامی کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے وہ ہے ہماری ہائی ڈپینڈنسی آن فارن لونز۔ دوسرے ملکوں سے لون لینا یہ ہمارے گورنمنٹ کی عادت بن گئی ہے۔ لون لینا کوئی بری عادت نہیں ہے، پر حد سے زیادہ لون لینا یہ بری عادت ہے۔ او بھائی، اگر آپ لون لوگے تو آپ کو واپس تو کرنا ہے نا وہ لون۔ اب ہماری اکانومی اتنی تباہ ہوئی ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کا قرضہ جو لیا ہے وہ ہم واپس نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں کہ بڑی بڑی ٹیکسز لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو پرچیزنگ پاور ہے نا عام آدمی کا وہ بگڑ جاتا ہے اور غربت بڑھ جاتی ہے۔ ہائی ٹیکسز لگانے سے ہماری بزنس کمیونٹی ہے نا اس پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ تو بزنس مین کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی سیف کنٹری میں جا کے وہاں انویسٹ کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کماتے ہو 10 روپے اور آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے 20 روپے، تو ظاہر سی بات ہے آپ گورنمنٹ سے کھپاتے ہوگے نا، تو اس لیے آپ کوئی سیف کنٹری ڈھونڈو گے جہاں پہ آپ کی بزنس اچھا ارن کرے۔ تو اس لیے فارن لونز جو ہیں اس کی وجہ سے جو ہائی ٹیکسز بڑھتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہماری اکانومی پہ بہت بڑا اسٹریس پڑ جاتا ہے۔ تیسرا کاز ہے
अनकंट्रोल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आप देख रहे हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस जो है उनकी अयाशियाँ, उनके हाई प्रोटोकॉल, उनकी शाही खर्चे, उनके शशके, ये सब कुछ हमारे मुल्क के ख़जाने पे बहुत बड़ा बोझ है। हमारे मुल्क के ख़जाने को ऐसे ही ये सियासतदान लूट रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ये हमारे सियासतदानों का बिहेवियर जो है हमारे इकानमी पे बोझ तो पड़ेगा ना। चौथा जो काज है वो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो सूरत हाल है वो तमाम बिगड़ी हुई है। वो कैसे? कभी फेडरल गवर्नमेंट का प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ तदाद चल रहा है, तो कभी गवर्नमेंट्स का आर्मी के साथ तदाद चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में लड़ रही हैं। टेररिज्म एक और बड़ा मसला है जो सर उठा जा रहा है। ऐसे कई मसले हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा होती है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होती। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के लिए तमाम अहम रोल प्ले करता है, मगर हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है वो बिगड़ी हुई है। इसकी वजह से हमारे मुल्क में कोई नहीं आ रहा इन्वेस्ट करने के लिए। सो ज़ाहिर बात है नो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पांचवा बड़ा काज है फेल्ड टैक्सेशन सिस्टम इन आवर कंट्री। हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है जिसके ज़रिए हम टैक्स को अच्छी तरह से कलेक्ट करें। ज़ाहिर सी बात है टैक्स कलेक्शन नहीं होगा तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। हमारे मुल्क के आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो टैक्स नहीं पे कर रही, और जो पे कर रहे हैं उन्हीं पे ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है हाई टैक्स लगा के, और कुछ लोगों को टैक्स से छूट दी जा रही है जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंडलॉर्ड्स। तो दोस्तों टैक्स सिस्टम जो है ना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी को मजबूत करने में, मगर क्या है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जिसकी वजह से टैक्स कलेक्ट नहीं हो पा रहा। टैक्स कलेक्शन का फेल होना मतलब कि रेवेन्यू का फेल होना है, और रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे मजबूत होगी। काज नंबर 6 जो है वो है मीनेस ऑफ करप्शन। हमारे मुल्क में पीएम से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सभी के हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं। जब हर कोई अपने बारे में सोचेगा तो मुल्क के बारे में कौन सोचेगा? भाई अगर आप खुद को संवारने की कोशिश करोगे तो मुल्क कैसे खुशहाल होगा? आप मुल्क को लूटते जाओगे और मुल्क तबाह होता जाएगा। आपको इक़्तिदार इसलिए मिला ताकि आप कुछ लोगों के लिए कुछ कर सको, मुल्क को खुशहाल बनाओ, मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न करो, पर यहाँ पे सिस्टम में कुछ और है। इक़्तिदार में आते ही हमारे सियासतदान, हमारे बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मुल्क को लूटते जा रहे हैं। हर कोई अपने आप के बारे में सोच रहा है बस। मसलन आपको 100 रुपया दिया जाए और ये कहा जाए कि भाई ये 100 लो और ये फ़लानी सड़क बनाओ, तो आप क्या करोगे? 10 रुपये का काम करवा के 90 रुपये आप अपने जेब में रखोगे। तो ऐसा तो तरक्की नहीं होगी ना भाई, कैसे खुशहाली आएगी यहाँ पे? तो ये करप्शन जो है ये बहुत बड़ा मसला है हमारी इकोनॉमी के लिए। और काज नंबर 7 डेसिलरेटेड एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चर हर मुल्क की इकोनॉमी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमारे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर जो है वो हमारी इकोनॉमी के लिए बैकबोन है, मगर बदकिस्मती से हमारे मुल्क की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तबाह होता जा रहा है। वो कैसे?
कोई भी नई टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ, और हम अभी भी वही आउटडेटेड टूल्स और मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे जो फार्मर्स हैं उनको क्रॉप सीड या फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स के बारे में कोई भी तालीम नहीं है कि वो कैसे इस्तेमाल किए जाएं। और तीसरी बात यह है कि पानी की कमी की वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह होता जा रहा है। और कास्ट नंबर 8वां, हमारे ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी। एक हिस्टोरिकल डेटा में ये दिखाया गया है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो किसी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं ठहरी, और उसके अपोजिट में वो पीछे जाती है। ये क्यों? क्योंकि जो हमारे इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ हैं ना, वो बदलती रहती हैं। एक गवर्नमेंट आई, उसने एक पॉलिसी बनाई, फिर दूसरी गवर्नमेंट आई, उसने दूसरी पॉलिसी बनाई, फिर तीसरी गवर्नमेंट आई और उसने तीसरी पॉलिसी बनाई। तो इसी की वजह से हमारी जो ग्रोथ है ना वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं ठहरती, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ख़राब होती जाती है। और काज नंबर 9, क्राइसिस ऑफ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी आ जाती है, पाकिस्तान रेलवेज़, पीआईए, पाकिस्तान स्टील मिल और 5 पावर सेक्टर डिस्कोज एंड ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड। ये सारे जो सेक्टर हैं ये पाकिस्तान में इसलिए बनाए गए कि ये पाकिस्तान के जीडीपी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। मगर क्या हुआ कि ये सारे के सारे सेक्टर हमारे इकोनॉमी को मजबूत करने के बजाय वो हमारे इकोनॉमी पे बहुत बड़ा बोझ बन गए हैं। मतलब कि ये सारे स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज जो हैं वो खसारे में चल रहे हैं और हमारी इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने इन्हीं इदारों में अपने मनपसंद आदमी मुकर्रर किए हैं, जो कि करप्शन की एक बड़ी वजह है। तो दोस्तों, ये सारे काजेज़ हैं जो हमारी इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं। आइए चलते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें रीजनल ट्रेड पे फोकस करना होगा। अगर तारीख़ में देखा जाए तो पाकिस्तान का ट्रेड जो है अपने रीजनल कंट्रीज़ से वो तमाम लो रहा है। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल देखें आप कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, और इंडिया के साथ दुश्मनी और ईरान पे जो पाबंदियां लगी हुई हैं इसकी वजह से। तो हमें क्या करना होगा कि हमें इन ममालिक से अपने ट्रेड के जो रिलेशन है ना वो बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे हमारी मईशत मजबूत हो जाए। इन रीजनल कंट्रीज़ से ट्रेड करने में क्या होगा, एक तो हमारे अच्छे ताल्लुकात बढ़ेंगे, दूसरी तरफ हमारी जो मईशत है उसको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि हमें जो स्टैंड ऑन इंटरप्राइज है ना, जो खसार में जा रहे हैं, उनको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा और उनमें रिफॉर्मेशन लानी पड़ेगी। और तीसरी बात, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना उसमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, न्यू मेथड्स, न्यू टूल, और हमारे जो फार्मर्स हैं उनको एजुकेट किया जाए सीड के बारे में, क्रॉप्स के बारे में, जो फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में उनको एजुकेट किया जाए। और हमारे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि डैम्स बनाएं और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको पानी मुहैया करें, ताकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अच्छी तरह से सांस ले और डेवलप करे। और चौथी बात ये है कि हमें जो टैक्स सिस्टम है ना उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे टैक्सेशन सिस्टम में एक प्रॉपर मैकेनिज़्म की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए टैक्स कलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। अगर टैक्स कलेक्शन बेहतर होगा तो हमारी रेवेन्यू जो है ना वो जनरेट करेगी।
रेवेन्यू जनरेट होगी तो हमारी मईशत बेहतर बनेगी, मतलब मजबूत हो जाएगी। तो इसलिए सब लोगों को टैक्स के दायरे में लाना होगा, किसी को भी माफ़ नहीं करना होगा। और एक बात ये ज़रूर है कि हाई टैक्सेस को ख़त्म करें, मतलब कि मुनासिब तरीके से जो टैक्स हो वो इम्पोज करनी चाहिए। और जो पांचवी बात है कि हमारे मुल्क में जो सूरत हाल है वो बिगड़ी हुई है, तो इसको कंट्रोल में लाना होगा ताकि हमारे मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी तो हमारी मईशत मजबूत होगी। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है उसको ख़त्म करना होगा। सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोऑपरेट करना पड़ेगा आपस में, और टेररिज्म के ख़िलाफ़ मजबूत इक़दाम उठाना पड़ेगा, तभी जाके हमारी जो मुल्क की सूरत हाल है वो बेहतर होगी। और नंबर 6, हमें रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पे फोकस करना पड़ेगा ताकि हमारे जो फॉरेन बिल्स हैं ना वो ख़त्म हो जाएं। और नंबर 7 जो है वो प्रॉपर लॉ बनाने पड़ेंगे हमें ताकि करप्शन को मुकम्मल तौर पे जड़ से उखाड़ा जाए। नंबर 8, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके हमारी मईशत मजबूत होगी। और नंबर 9, गवर्नमेंट के जो शाह खर्चियाँ हैं ना उसमें कमी लानी होगी, मतलब कि गवर्नमेंट का जो हाई प्रोटोकॉल है, शाह खर्चियाँ हैं, उनके शशकें जो हैं इनमें कमी लानी होगी। मतलब कि सभी सियासतदानों को और सभी ब्यूरोक्रेट्स को अपना ये शाही बिहेवियर ख़त्म करना पड़ेगा और ऑस्टेरिटी की पॉलिसी अख्तियार करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो प्रॉस्परस करेगी। एंड लास्टली, द रोड टू प्रॉस्पेरिटी इज़ बाय फॉलोइंग the policy of austerity, slashing unnecessary government spending, and serious belt tightening. For example, to spend less because there is less available, and avoiding excessive taxation. तो दोस्तों ये सब कुछ था हमारी इकोनॉमी के बारे में, उनके वजूहात और उनके सॉल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।